Sinha, from Vitas, from CPIM. We have Shri Abdullah ji from the DMK party, from extreme right. We have Javed Ansari ji, Javed Ali ji, आप कीजिएगा, from समाजवादी पार्टी. और आज जिस विषय पर हम आपके साथ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है. और पिछले सत्र में when the Parliament was in session, the India Alliance parties deliberated on the recently passed Digital Data Protection Act. If you would remember, this Digital Data Protection Act had a small history to which I would briefly go into. That there was a JPC set up, an extensive report was presented, and subsequently the government, as it has the habit, when it is going to pass the bills, brings certain amendments which have fundamentally changed the nature of the JPC report. So when this bill, the Digital Data Protection Act, was passed, it was done when the entire country was witness to the no confidence motion in Parliament in the year 2023, which was brought in the context of Manipur. And therefore, there is a particular section in the Right to Information Act. It is called Section 8(1), जिसमें ये कहा गया है कि अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में ऐसी कोई जानकारी मांगी गई है जिसका पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कोई संपर्क नहीं है, तो ऐसी सूचना देना अनिवार्य नहीं. लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, पर आपको देना पड़ेगा. तो अभी जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ उसमें एक बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, सेक्शन 44(3), which is amending section 8(1)(j) of the RTI Act. And now it says, notwithstanding anything contained in this act, there shall be no obligation to any citizen information which relates to personal information. बाकी जो चीजें हैं पब्लिक इंटरेस्ट की, पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड जो बातें हैं, कि we urge you, we are requesting the Minister of Information Technology, we urge you to repeal section 44(3) of the Digital Personal Data Protection. और ये जो पिटीशन है, इस पिटीशन पर किन महान हस्तियों का, नेताओं का हस्ताक्षर समर्थन है? आदरणीय राहुल गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का, बालू जी का, जॉन पीटर्स जी का, विभिन्न हमारे जो समर्थक करने वाले जो दल हैं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना यूबीटी हो, विभिन्न दलों के साथ हमने विचार विमर्श कर हमने सोचा एक जल्द से जल्द an immediate and urgent action must be taken, and a joint petition was circulated because the Parliament was adjourned. Therefore, we got a representation of the on this with some very eminent voices of the opposition. विरोधी दलों के बहुत अहम नेताओं की आवाज, उनका हस्ताक्षर इस पिटीशन पर है. तो बहुत ही आज कल के बीच में ये हम
मंत्रालय में भेजेंगे और आप आशा करेंगे कि सरकार इस पर गंभीर मंथन करेगी और जो हमारा परामर्श एडवाइस है कि सेक्शन 44(3) को रिपील करना वो करेगी। वो इससे करने से डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के मूल जो बिल है उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की जो आत्मा है उसको हम बचा पाएंगे। बाय रिपीलिंग दिस, द फंडामेंटल नेचर ऑफ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट विल रिमेन intact, but the soul of the RTI Act will be protected. And I'm glad that the opposition parties on this issue have come together. I want to thank all the leaders of the India Alliance opposition parties. Thankful to the MPs for having come down here. I only want to say that this is our view of democracy, that citizens have rights and government has a duty to uphold these rights. हमारा सोच ये है कि नागरिकों के पास अधिकार है और सरकार का कर्तव्य बनता है उन अधिकारों को संरक्षण करना, लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार का नजरिया उल्टा है। उनको लगता है कि सारे अधिकार सरकार के पास क्योंकि वो निर्वाचन जीत के आए। They think the BJP thinks that them being elected gives them all the rights and citizens has no rights. Now citizens have the duty to follow what the government has ordered them to do. अमित शाह जी कहते नहीं पार्लियामेंट के मानना ही पड़ेगा। अधिकार है नागरिकों के, हमारा कर्तव्य है कि हम नागरिकों के अधिकारों को और सशक्त करें, संविधान के अनुसार कानून बनाएं, पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुए कानूनों को हम अपहोल्ड करें। और इनका ये है कि माइट इज राइट, ब्रूट पावर, एब्सोल्यूट पावर, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग सिटीजंस राइट्स। सो आई वुड जस्ट लाइक टू क्लोज माय ओपनिंग रिमार्क्स देयर एंड आई वुड रिक्वेस्ट आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम बन गए हैं जिस माध्यम के द्वारा आरटीआई एक्ट से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थ्राइव करेगा। वरना आप जान रहे हैं जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है किस तरीके से हर तरीके से कोलैप्स कर दी गई है। स्पाइनलेस कहने में मुझे कोई 2 मिनट भी नहीं लगेगा। पर ये जो चौतरफा हमला इस बिल के माध्यम से हो रहा है वो आप सबकी जानकारी में लाना और आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आरटीआई एक्ट के बारे में संदर्भ में उन्होंने बताया गौरव जी ने कि किस तरीके से आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट करने का काम हो रहा है। और मैं सरप्राइज हूँ, कल ही आईटी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी वो आधार की टीम से बात कर रहे थे, उनसे कह रहे थे एक न्यू लॉ ड्राफ्ट करिए जो कि बिल्कुल अलाइनमेंट में हो विद आरटीआई एक्ट का न्यू लॉ लाएं जिससे वो अलाइनमेंट में आए। तो यानी आप बिल्कुल क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को आप रोड टू इग्नोरेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जनता को पता ही नहीं चलेगा, तो ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना हमने किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे राज्यों में जो भ्रष्टाचार की बातें निकली हैं वो आरटीआई के माध्यम से ही निकली हैं, उसी पे सबसे बड़ा हमला हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो डीपीडीपी एक्ट था जो 2019 में पहले आया था उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। 2021 में भी जो लाए थे जेपीसी के बाद उसमें भी ये प्रावधान नहीं था। 2023 में अपनी मनमानी कर इन लोगों ने इस प्रावधान को लाए हैं जिसे आरटीआई एक्ट को बिल्कुल नल एंड वॉइड करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी आरटीआई कानून तो होगा पर जो वेपन है आपके हाथ में, जो एक हथियार है आपके हाथ में, वो खत्म कर देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है जिस तरीके से प्रेस फ्रीडम की हम बात करते हैं, और शुरुआत में ही मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा कैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं हम, कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई भी अगर डेटा चाहिए आपको डेटा फिनिशरी बना देंगे, और आप कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए आपको अकाउंटेबल बना देंगे, और उसमें फिर फीस भी लगेगी, वो भी होंगे, फाइन्स भी लगेंगे जो कि 200 करोड़ तक जा रहे हैं, 500 करोड़ तक भी जाने का हो सकता है। और जो वर्स्ट पार्ट है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बन रहा है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो बनेगा वो सेंट्रलाइज्ड इन नेचर होगा, यानी डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं है। जैसे अगर तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, वहां की पॉपुलेशन अलग है,
तो उनको भी उसी के कमांड में ले आया जाएगा, सेंटर के कमांड में। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले हैं, मराठी पर्सनल डेटा है, उसको भी सेंटर के कमांड में ला रहे हैं। कौन चेयरमैन बनेगा, कौन बोर्ड मेंबर्स होंगे, क्या उनकी सैलरीज होंगी, क्या उनके अलाउंसेस होंगे, क्या उन पे एक्शन लिया जाएगा, वो भी केंद्र सरकार के ही नुमाइंदे डिसाइड करेंगे। तो ये किस तरीके से फ्री एंड फेयर है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये भी पावर है कि वो डिसाइड करेंगे कौन इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। प्राइवेट एंटिटीज भी, अगर हम प्राइवेट एंटिटी से भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, वो भी उनको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम शेयरिंग इंफॉर्मेशन। हम लगातार देख रहे हैं कि आरटीआई का पीएम केयर्स को आरटीआई से हटा दिया। कोई भी चीज जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है, आरटीआई से हटा देते हैं। अब ये करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, सिटीजंस एम्पावर्ड एनलाइटेंड सिटीजंस हो, जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की मांग करते रहे हैं, जिसकी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, उसको भी खत्म करने का काम है। तो मैं आप सबसे मेरी यही अपील होगी कि आप सबके माध्यम से हम सब इस आवाज को बुलंद करें कि ये जो डीपीडीपी एक्ट है अभी तक नोटिफाइड नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन से पहले उसमें ये जो भी हमारी चेंजेस हैं जो हमने लेटर के माध्यम से की हैं, उसमें ये बदलाव लाया जाए, सो दैट हमारे जो पावर्स हैं, सिटीजन के जो पावर है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के जो पावर्स हैं, जर्नलिज्म के जो पावर्स हैं, फ्रीडम के प्रेस फ्रीडम के जो पावर्स हैं, उसको और मिट्टी में ना मिलाया जाए। इन्हीं करने का और कुछ ऐसी सूचनाएं जो जन सामान्य को मिलनी चाहिए और जिन्हें सरकार बचाना चाहती है, रह गया था, इस एक्ट के माध्यम से भी उसको पूरे तरीके से समाप्त करने का इरादा सरकार का है। इस सरकार को बहुत प्यार है सूचनाएं छुपाने से। ये हर प्रकार की सूचनाएं जो जनता जानना चाहती है या जो जनता के बीच में आनी चाहिए, उनको छुपाने का प्रयास करती है। हम सब लोगों ने ये तय किया है कि सरकार के इस काम को रोकने के लिए, अब आज की तारीख में तो हम उनसे अपील ही कर सकते हैं, और भविष्य में यदि कोई और दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा तो वो भी बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। This RTA Act was a milestone in the trajectory of the nation to be a modern democracy, to bring in transparency in administration, to empower the citizens and the activists. At a stroke, they have done away with the RTA. But further, as Priyanka said, far-reaching implications on the freedom of media. As you all know, what they have actually drafted for the media. Already there are a lot of coercive steps that are being taken. And I would exhort my friends in the media to have a look at the JPC report of 2019. Many of the provisions that have been brought in are contrary to the recommendations of the JPC. Even the Digital Data Protection Board, there has been a recommendation how the board members need to be appointed. Bodies like, including Attorney General, has to be roped in to make sure that there is a due diligence in the selection of the Digital Data Protection Board members. Now, nothing of that have been incorporated. We DMK is a movement that has always fought for the freedom of expression, that you all know very well. Whenever there has been a threat to freedom of expression, DMK has fought always. In that regard, I would like to state on behalf of our party leader and Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, that DMK is opposing this even now, and we will join our hands together with India Alliance to fight for this freedom of expression and to save the democracy. Thank you. ये जो एक्ट मात्र 6-7 दिनों में दोनों सदनों से पारित हुआ और पूरा देश ने देखा कि कितने डिसरप्शन से और किस तरह से किसी भी प्रकार के डिस्कशन को और सजेशन को नहीं माना गया। आज के डेट में जो स्थिति है कि प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद भी नोटिफाई नहीं हुआ है, तो हमारी मांग और हम लोग सब लोग कोशिश करेंगे कि इस एक्ट को पूरी तरह से रिवाइज करके और जो
सच्चाई है जिससे सरकार भागना चाहती है, जानकारी है जिससे सरकार भागना चाहती है, जिसका एकमात्र कारण है कि जवाबदेही नहीं लेना चाहती है। जितनी भी उनके साथ में, सरकार के साथ में घटनाएं घटित होती है, हर तरह के अत्याचार जिसके लिए जिम्मेदार सरकार है, उस तरह के जानकारी से भी अब लोगों को वंचित रखना चाहती है। और खासकर जानकारी किसे चाहिए? विपक्ष को चाहिए और पत्रकार समाज को चाहिए, जर्नलिस्ट जो विभिन्न, और आप हम सबको मालूम है कि आज के डेट में पत्रकारिता भी डेमोक्रेटाइज हो चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उसमें भी कई कमजोर तबका के लोग हैं जो कि जानकारी हासिल करके और सरकार को बेनकाब करना चाहते हैं। उन सारे प्रयासों को सामूहिक तौर पर रोकने का जो ये प्रयास है, इस बिल के माध्यम से सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। क्योंकि यह बिल अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, इंडिया अलायंस के जितने भी साथी हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरह से रिवाइज करके, अगर ट्रांसपेरेंसी को एस्टेब्लिश नहीं किया गया तो इस एक्ट को लाने का कोई मतलब नहीं है। जो आरटीआई के माध्यम से किया गया था उसको तो पूरी तरह से पंगु बनाया ही गया, अब इसको सरकार की तरफ से कांटेदार बनाने की कोशिश की गई है कि कोई सोच नहीं पाएगा। और शायद यही कारण है कि उनको लगता है कि इस माध्यम से अपने नाकामयाबियों को छुपा सकते हैं और लोगों को गुमराह कर सकते हैं, और जिसके ऊपर कोई भी प्रकाश नहीं डाल सकता है, सब्सटैंशिएट नहीं कर सकता हो, चाहे विपक्ष हो या पत्रकार जो कि नागरिकों की अधिकार को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम आगे आए हैं। और हम आशा करते हैं कि इस बार जो विभिन्न जो समाज के अंग है वो भी आगे बढ़ते जाएंगे। जो पत्रकार समाज है, जो नागरिक समाज है, हम सबको मिलकर हमारे देश को, हमारे देश की लोकतांत्रिक आदर्शों को बचाना है।